the equivalent conductivity. So the molar conductivity, as the name suggests to you, it is the conductivity of an electrolyte solution containing 1 mole of electrolyte. If it is having 1 mole of electrolyte, तो जो conductivity आएगी, it is called molar conductivity. The conductivity you will get is molar conductivity. Okay. So इसका मतलब क्या है कि जब ions produce होते हैं, if you have taken 1 mole of electrolyte in V centimeter cube of, we have assumed volume, any volume that is 500 कुछ भी, जिस वॉल्यूम में अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले लें और इलेक्ट्रोड वही आपकी 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो मगर एरिया वी हैवंट स्पेसिफाइड, देन वी यूज टू गेट मोलर कंडक्टिविटी. ओके बेटे, सो द मोलर कंडक्टिविटी is the specific conductivity into volume, is the specific conductivity in volume. What is V particularly is volume of electrolyte containing 1 mole of electrolyte. ठीक है, 1 mole of electrolyte. स्क्रीन तो देखो, अगर मैं मोलैरिटी निकालूं, 1 मोल लूं, वॉल्यूम नीचे लो, इंटू 1000 हेयर करूंगी. ओके, सो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? V इज 1000 over m, means V is 1000 over m. Putting this value, lambda m will be K into 1000 over m. So like this you can find the molar conductivity. So what are the units of molar conductivity, bete? It is the unit of specific conductivity divided by per mole, because you have taken in the terms of molarity, means we can say it can be ohms, centimeter square, mole inverse, or mu centimeter square, it is inverse, mole inverse, or Simon centimeter square, mole inverse. And if you have to take in SI, then you will take meter square, mole inverse. Okay, so these are the various units we are taking the conductance in the term of molar conductivity. Okay, अगर हमने 1 mole of electrolyte ली है, in the same way if we have taken 1 gram equivalent, equivalent term हम यूज करते हैं जब हम normality निकालते हैं. Next is बेटे equivalent conductance or conductivity. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर you have taken the electrolyte which contain 1 gram equivalent, 1 gram equivalent of electrolyte, how much conductance that electrolyte is having, that is equivalent conductivity. 1 gram equivalent of electrolyte की कितनी conductance है वो हम कहेंगे that is our equivalent conductivity. So equivalent conductivity will be again, that is lambda E, ठीक, is equal to specific conductivity into volume. अगेन हम वही बात करेंगे कि ऑल द आयन जितने भी प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, उसकी कितनी कंडक्टिविटी है, वी हैव टेकन द वॉल्यूम V. ठीक, अब हमें पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट कब आता है, हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं. नॉर्मेलिटी क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ गिवन मास ओवर इक्विवेलेंट मास. ठीक, मीन्स इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं. अगर हम नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 ले लें तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V? V will be
that is 1/n into 1000. So we will put in this, that is k into 1/n into into 1000. Okay, so likewise we can find out equivalent conductivity. Now what are the unit of equivalent conductivity? Again our unit will be ohm inverse, centimeter inverse, okay, and equivalent inverse. Now we have taken as a gram equivalent. Again, in the case of Simon centimeter square equivalent inverse. And if you have to take SI, so Simon meter square equivalent inverse. We are more keen to do molar conductivity rather than equivalent conductivity. This is more in our syllabus. So we'll emphasize on the molar conductivity, and we'll study the variation of molar conductivity with the concentration. Very important point to remember, bete. Very important. Yesterday also I have told you that specific conductivity always decreases on increases dilution. अगर आप किसी solution को dilute करते हो, always and always remember that the specific conductivity will decrease, क्योंकि number of ions per unit volume will decrease. मगर if I am talking about molar conductivity, and hence we have to study variation of molar conductivity with concentration. Means if we decrease the concentration, if we will dilute the solution, then our molar conductivity will increase. ओके बेटे, क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम के इंटू वॉल्यूम. तो नो डाउट हमारा क्या है बेटे, के डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम ओवर पार करेगा. अब वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलारिटी पे. तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे इंक्रीज करेंगे. द नंबर ऑफ मोल्स विल इंक्रीज, देन मोलर कंडक्टिविटी विल बी ऑल्सो इंक्रीज. जब आप डाइल्यूट करोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स उस यूनिट एरिया में इंक्रीज करेंगे. ठीक है, तो डाइल्यूशन से ऑलवेज रिमेंबर दैट मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. ओके, सो हियर ऑल्सो हम मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की केस में भी देखते हैं, और वी आर सीन अंडर द वीक इलेक्ट्रोलाइट केस. सो बोथ द केसेस वी विल स्टडी with the help of graph. Okay, with the help of graph we will study both the conductivity. One is molar conductivity for the strong electrolyte, and one is for the weak electrolyte. First is beta strong electrolyte. The variation we study is according to beta a equation which is given by Debye-Huckel. He has given us the relationship between conductivity and at any concentration. This is at any concentration, and conductivity at the infinite dilution. जब आपने बहुत dilute कर दिया और A आपका constant है और ये आपकी concentration है कि आपने कितनी concentration ली. तो lambda Cm आपकी क्या है बेटे? Is a molar conductivity at any concentration.
और ये क्या है, लैम्डा नॉट एम, जब आपने डाइल्यूट बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी और वो ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद ये और कंडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती, तो इसे कहा जाता है लिमिटिंग कंडक्टिविटी। इसे कहा जाता है लिमिटिंग कंडक्टिविटी की, और आप जितनी मर्जी डाइल्यूशन कर लो इसके बाद कंडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती। ओके, सो ए इज अ कांस्टेंट जो नेचर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट की, और सी इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर सॉल्यूशन। अब लेट अस स्टडी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और आप ग्राफ से ज़्यादा समझोगे इसको। इफ आई विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन molar conductivity and the concentration, let me take a strong electrolyte like KCl. Okay, let me take a strong electrolyte like KCl. मान लो कि ये, अब मैं पहले बनाऊं फिर आपको समझाती हूँ ये ग्राफ कैसे आएगा। KCl है बेटे, KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम ये टर्म करते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए या आयोनाइज करें, उन्हें ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, कि वो ऑलरेडी आयोनाइज स्टेट में बैठते हैं। तो इनके ऊपर डाइल्यूशन करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन बेटे जी ऐसे इंक्रीज कर रही है और ऐसे आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। अब आपने इस तरफ जाते हुए डाइल्यूट करना शुरू किया सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन को करना शुरू किया डाइल्यूट। अब हम क्या करें, ये KCl की कर्व है। पहले जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी तब मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, अब आपने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम कर दी, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी ये वाली आ गई, और इससे कहेंगे लैम्डा नॉट एम, मीन्स हमने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दी, इसके बाद हम डाइल्यूट करेंगे ही नहीं, और तो ये होगी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बेटे, अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो पहले कंडक्टिविटी की वैल्यू ये आई, फिर हमारी वैल्यू ये आई, और जब हम इनफाइनाइट पे पहुंचे तो हमारी ये वाली आ गई। मीन्स नो डाउट मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हुई, मगर ये इंक्रीज बहुत कम हुआ। देखो ये इंक्रीज इतना सा हुआ, इतना सा क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आयोनाइज्ड होती है। फर्क इतना है, डाइल्यूट करने से उसकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। जब आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, आप वॉल्यूम इंक्रीज कर दोगे, जो मोल्स हैं, जो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनको जगह मिल जाएगी मूव करने की, और जितने कैटाइन और एनाइन ईजिली मूव करेंगे उतनी कंडक्शन पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जब आप डाइल्यूट करते हो बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को, उनकी कंडक्शन पावर क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि उनकी मोबिलिटी आइंस की इंक्रीज करती है, क्योंकि डिसोशिएटेड तो वो पहले ही होते हैं, तभी उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो इंक्रीज करती है इनकी भी, और हमें एक लिमिटिंग वैल्यू भी मिलती है कि इसके बाद और हम डाइल्यूट, ये लिमिटिंग वैल्यू, इसके बाद हम और डाइल्यूट करेंगे भी तब भी हमारी वैल्यू यही रहेगी। अब आज हम केस स्टडी करते हैं बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। लेट अस स्टडी द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये ग्राफ एज सच पेपर में बनाता है, तो आपको इंटरप्रेट करना होता है ग्राफ को। तो दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, और दोनों ग्राफ इकट्ठे भी प्लेस्ड होते हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल हूं मैं, like acidic acid, I have taken the example acidic acid. Now in this case of acidic acid, आपको पता है कि acidic acid एक weak है, मीन्स completely dissociate नहीं करता। अब इसका ग्राफ कुछ हमें इस तरह से आता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों आया देखो, स्टडी करते हैं। हम डाइल्यूशन बेटे इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ डिक्रीज कर रहे हैं। अब पहले तो मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, जैसे हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया मोलर कंडक्टिविटी तो भाई यहाँ पहुँच गई,
पर फिर भी हम लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये लाइन के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ, तो हमें लिमिटिंग तो नहीं मिली। मगर हमने इस ग्राफ में से ये सीखा कि जैसे जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता जाता है, मोलर कंडक्टिविटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो पहले बहुत कम होती है, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप डाइल्यूशन करते हो तो वो आयोनाइज करती है, दैट विल आयोनाइज, और जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करते जाओगे उतना ज़्यादा वो आयोनाइज करती जाएगी, उतने आयंस और दूर जाते जाएंगे और हमारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट वो बहुत बढ़ती जाएगी। In case of strong electrolyte, term uses mobility. In case of weak electrolyte, we have used the term ionize करते हैं, okay? It is ionizing. So we will get more value as compared to a strong electrolyte. अच्छा, अगर ये हुआ तो हमने ये अभी मैंने बोला कि इसको ग्राफ को टच नहीं की लाइन, अगर इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये सीधा सीधा जाती रहेगी, और मगर इस चीज़ को ये टच नहीं करेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन था कि अगर इसकी लैम्डा नॉट एम दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी हो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो हमारे लिए डिफिकल्ट है, वी कांट फाइंड आउट। स्ट्रॉन्ग की तो हम निकाल लेंगे, वीक की कैसे निकाल लेंगे? फिर एक साइंटिस्ट आया कॉलरॉश, उसने अपना लॉ दिया, उस लॉ की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी लैम्डा नॉट निकालना शुरू कर दिया। सो नेक्स्ट कम बेटे कॉल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, टर्म इज इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन। मैंने ये क्यों लिखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन? इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन का मतलब ये है बेटे जी, कोई भी आयन हो, कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, वो ये नहीं जैसे कि अगर NaCl के साथ लगा है या Na सल्फेट के साथ लगा है या Na नाइट्रेट के साथ लगा है, Na को कोई मतलब नहीं है वो किसके साथ लगा है, मगर जब आप उस सॉल्ट को आप वाटर में डालोगे तो Na की अपनी आयनिक माइग्रेशन होगी, वो उसी स्पीड से माइग्रेट करेगा अगर आप टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं करते, ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ मोल सेम लेके चलते हो, क्योंकि तभी हमने मोलर कंडक्टिविटी यूज़ करी, क्योंकि अगर हम सिंपल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूज़ करते तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे करते थे, तो हमने नंबर ऑफ मोल सेम कर दिए। और अगर हमने NaCl लिया या सोडियम सल्फेट लिया या सोडियम नाइट्राइट, सोडियम अपनी इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन रखेगा, नंबर ऑफ मोल सेम है, ठीक। अब जब इंडिपेंडेंट आयनिक माइग्रेशन रखेगा तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी इंडिपेंडेंट आएगी, मीन्स वो कितनी कंडक्टेंस शो कर रहा है, लैम्डा नॉट उसका कितना है Na पॉजिटिव का, वो भी इंडिपेंडेंट आएगा। अगर हमें इंडिपेंडेंट सबका मिल जाए, अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, दिस लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन यू विल डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, एज सच हमें नहीं एप्लीकेबल है, एंड न्यूमेरिकल डू तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो अब इस लॉ ने क्या किया कि जब कॉल्श ने लैम्डा नॉट स्टडी करी, मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्टडी करी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ने, इसने ये इसको ये पता चला कि हर एक आयन की इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है, इसका मतलब हर एक आयन की जो मोलर कंडक्टेंस है वो एक स्पेसिफिक है, वो एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन देता है। तो इस लॉ को क्या की बोला हमने, कॉल्श लॉ, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज each ion makes a definite contribution to total molar conductance of electrolyte at infinite dilution irrespective of the nature
ऑफ अदर आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट। मैंने एग्जांपल दी, मेरे पास सोडियम नाइट्राइट है, मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। जब आप इनफाइनाइट डिल्यूशन कर दोगे, सोडियम अपनी एक इनफाइनाइट कंडक्टिविटी देगा। वो उसने नहीं देखना कि उसके पास नाइट्रेट लगा हुआ है या क्लोराइड लगा हुआ है। ठीक है, अब जनरली इसको समझना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, आई हैव हैविंग दिस इलेक्ट्रोलाइट, और अगर मैं सॉल्यूशन में डालूंगी तो आई विल गेट X मोल्स ऑफ AY पॉजिटिव, क्योंकि Y तो इसकी वैलेंसी हो गई, प्लस Y मोल्स ऑफ X पॉजिटिव। ठीक, ये मिलेगा। अब इन दोनों की इंडिपेंडेंट लैम्डा नॉट है, इट विल नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। तो अगर मैंने पूरे की लैम्डा नॉट निकालनी हो, AX ओके, सो अगर मैंने पूरे की, अगर आई हैव टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगी। अब इसकी कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी कितनी मोलर कंडक्टिविटी है, और इसकी कितनी मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास NaCl हो बेटे, अगर इसकी मैंने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो, इफ आई हैव टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, यही निकाल लेंगे। ओके, अगर मेरे पास Bl BaCl2 हो, तो मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Ba2 पॉजिटिव की, Ba का तो एक ही है, प्लस 2, ये 2 कहाँ से आया, ये वाला, प्लस Cl मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ओके बेटे, तो आपको कॉल्श लॉ समझ आया। कॉल्श लॉ ने ये कहा कि कोई भी आयन किसी के साथ हो, ये वैल्यू आपको गिवन होती है, इस वैल्यूज को यूज करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकेंगे, एंड वो वाला न्यूमेरिकल विल डू टुमारो डेफिनेटली। नाउ इसके एप्लीकेशन स्टडी करें लॉ की हम। द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, ठीक, so the first application is the calculation of the degree of dissociation। ठीक, it help in calculation of the degree of dissociation। हम कर भी चुके हैं in the previous class, degree of dissociation जिसको हम अल्फा कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, अल्फा। अल्फा में हम क्या बोलते थे कि नंबर ऑफ आयन डिसोशिएटेड ओवर टोटल नंबर ऑफ आयन्स टेकन। तो वैसे ही मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी कितनी है। यहाँ पे पूरे आयन्स बन गए, और पूरे आयन्स कब बने, और जब तब इनफाइनाइट आ जाती है, और जो इनिशियल ली है आपने किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे, वो हम ऊपर लेंगे तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज के। अब अगर इफ यू रिमेंबर द ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो उससे हमने निकाला था। ठीक, टू रिकॉल दैट लॉ हमने वी हैव टेकन, चलो वी हैव टेकन दिस वन। ओके, लेट अस अज्यूम कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB इज C, तो ये बने नहीं थे, और अल्फा हमने क्या लिया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या था, परसेंट जो डिसोशिएट और आयोनाइज हो, ये ओवर 100%, तो अल्फा ये ले लिया था।
मान लो सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, उसमें से ए बी सी अल्फा डिक्रीज हुई है, तो सी अल्फा एंड सी अल्फा ये फॉर्म हुआ था, दिस वी गॉट फ्रॉम ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। और हमने फिर क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, सी अल्फा ओवर सी अल्फा। अब सी अगर कॉमन ले लें तो सी स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी वन माइनस अल्फा। सी से सी कैंसल आउट बेटे, सी से सी कैंसल आउट, यू विल गेट सी अल्फा स्क्वेयर ओवर वन माइनस अल्फा। तो ऐसे हमारे पास क्या आया था। और अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है बहुत वीक है, अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है, तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा जो नीचे वाली है अल्फा, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, वी कैन निगलेक्ट इट, क्योंकि अगर वीक है वो डिसोशिएट नहीं करेगा। तो वन माइनस अल्फा को हम निगलेक्ट करके के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर भी कर सकते हैं। अगर इक्वेशन में लिखा हो कि आपका बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा इज बहुत 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 लेस देन वन, मीन्स ये 0.0000001 आ जाएगा, क्योंकि वो डिसोशिएट ही नहीं करेगा। तो दैट इज वाई इट इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ वैल्यू। तो हम इसको सी अल्फा स्क्वेयर के इक्वल भी इक्वेट कर सकते हैं, ठीक बेटे। और थर्ड इसकी क्या है एप्लीकेशन, that is calculation of the solubility of springly soluble salt, calculation of the solubility of springly soluble salt। इसको समझो, देखो हमारी लैम्डा नॉट एम क्या है, के इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी। हम क्या मोलैरिटी की जगह पे यहाँ पे सॉलिबिलिटी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल जो कि हमारे बनते हैं, तो जितना कोई सॉलेबल होगा उतने नंबर ऑफ मोल्स ही होंगे। अगर मैंने NaCl ले लिया और मैं बोलूँगी कि उसके 1 मोल है, उसकी मोलैरिटी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए हैं, तो सॉलिबिलिटी भी 1 ही आएगी। M और S इक्वल है, जितना कोई सॉल्ट सॉलेबल है मीन्स उतना वो आयोनाइज किया, उतना वो सॉल्यूशन पे गया, मीन्स उस सॉल्यूशन में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मोलैरिटी को इक्वल कर सकते हैं सॉलेबिलिटी में। जो सॉल्यूशन के अंदर गया नहीं है दैट मीन्स वो सॉलेबल नहीं है, उसके वो उतने आइंस प्रेजेंट नहीं है सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी को वी कैन टेक इक्वल टू सॉलेबिलिटी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, E1 एंड E1, our calculation of solubility from springly soluble salt. Okay, so hence the lecture is finished. Any doubt you can ask.